This conference will now be recorded. Another important part in case of uh, our what we can say that in case of our VMware vSphere 7.0 networking, we should know about the each and every part related to the networking. ये थोड़ा सा डिस्कशन किया था हमने लास्ट सेशन में कि for the networking we should know about the IP address, class, version, public private IP address में gap, about the concept of CIDR and subnetting. ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए, right? Total number of switches की बात करें तो vSphere contain two different types of switches. One is a standard switch and next is distributed switch. Correct? Standard and distributed switch. So our responsibility, firstly, we just need to start with the standard switch because the DV switch is a part of our vCenter server. और standard switch जो है वो हमारे ESXi means एक सिंगल अगर आपने होस्ट इस्टेब्लिश कर रखा है तो सिंगल होस्ट में आप स्टैंडर्ड स्विच मैनेज करेंगे और अगर आपके पास मल्टीपल होस्ट है तो उस केस में आप डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच की जगह स्विच की हेल्प से चीजों को कॉन्फ़िगर करेंगे. क्लियर? Yes. So our responsibility to know each and everything related to the standard switch, क्या ऑप्शन रहता है, कैसे सेटिंग्स उसमें मैनेज करते हैं, ये हम सब देखने वाले हैं. बट बिफोर दैट आप थोड़ा सा हिंट दे दो मीन्स हाउ मच यू कंफर्टेबल विद दीज टॉपिक्स लाइक एज अ बेसिक ऑफ आईपी एड्रेस, पब्लिक प्राइवेट आईपी एड्रेस एंड सीआईडीआर वैल्यू, इनमें कितना कंफर्टेबल है आप? CIDR सबनेटिंग तो पता नहीं सर. IP एड्रेस क्लस्टर वगैरह तो पता है, फिर भी पब्लिक एंड प्राइवेट IP. Okay, what is difference between public and private IP address? सर पब्लिक पब्लिक तो सर अपना इंटरनल हो गया ना सर. प्राइवेट प्राइवेट आउटसाइड के लिए हो गया है. नहीं Do सर we सॉरी, have मैंने any? गलत बोल दिया सर. Hmm. पब्लिक आईपी तो बाहर के एक्सेस के लिए होता है. ये मान लो पब्लिक आईपी हमने दिया है किसी को, Hmm. किसी वीएम को बाहर से एक्सेस करने के लिए आउटसाइड, उसके लिए यूज होगा आई गेस. प्राइवेट आईपी तो अपना इंटरनल हो जाता है. एंड डू वी हैव एनी रेंज? कैसे डिसाइड करेंगे कि हमें पब्लिक कोई रेंज सॉरी है? सर, रेंज. हाँ, रेंज ऑफ पब्लिक का प्राइवेट आईपी एड्रेस. नहीं सर, ऐसा आइडिया तो नहीं. नो प्रॉब्लम, लेट मी एक्सप्लेन यू फ्रॉम स्क्रैच लाइक एज आईपी एड्रेसिंग. उसके बाद फिर हम मूव करेंगे अपने इस इन्वेंटरी पे एंड डिस्कस अबाउट द एवरीथिंग. बेसिक ऑफ आईपी एड्रेस, नॉट मच, just the basic understanding of IP address. So in case of IP address, you know that we have a class and range, and we should know about the default subnet. ठीक है, रेंज की बात करें तो वी हैव अ क्लास ए, बी, सी, डी एंड ए. ये अपने पास रेंज हो गई, क्लासेस हो गई, सॉरी. रेंज की बात करें तो स्टार्ट फ्रॉम 0 to 126, 128 to 191, 192. सी क्लास की बात करें तो 223, 224 to 239, 240, 254. दिस इज द रेंज. ठीक है, और इनमें से ए, बी एंड सी, ए का जो सबनेट मास्क निकलेगा 255.0.0.0, बी का जो सबनेट मास्क निकलेगा 255.255.0.0, सी क्लास 255.255.255.0. ये तीनों ही एड्रेस आपके कंप्यूटर नेटवर्क में यूज होते हैं. Anyone can use this address. Talk about the D. It is used for the multicasting.
video conferencing, and about the e-class की अगर हम बात करें तो which is related to research and development, means no one can use these IP address. It is used for research and development. So our responsibility to use A class, B class, and C class. That's it. Version की बात करें, you know that there are two different types of IP versions are available. IPv4 and second one is IPv6. The meaning of IPv4, you know that it contains a total number of bits 32. The address space capacity is 32 bit, and IPv6 contains 128 bits. Clear? Yes, sir. Yes. Talk about the range, which is really important. About public and private IP address. So in case of public and private IP address, A class, B class, and C class. A class is started from 10.0.0.0 to 10.255, 255, and 255. B class 172.16.0.0 to 172.31.255. C class 192.168.0.0 to 192.168.255.250. This is the range of private IP address. इसके बाद जितनी भी IP address की क्लास आपको दिखाई पड़ेगी, जो भी क्लासेस रहेगी आपकी IP addresses की, which is considered as a public IP address. इसके अलावा मीन्स 10 के अलावा 172 के अलावा या फिर 192 के बाद जो भी एड्रेस आपको दिखाई पड़ेगा, all the address are considered as a public address. Is it clear? Yes, sir. Our responsibility to understand about कि which IP address do we need to use. कौन सा क्लासेस हमें यूज करना है अपने रियल इन्वायरमेंट में, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी. वो हम डिसाइड करेंगे कि हमें किस रेंज की आईपी एड्रेस को यूज करना है, इन्वॉल्व करना है अपने VMware के नेटवर्किंग में, या फिर आप बोल सकते हो लोकल नेटवर्किंग में. इट्स नॉट मैंडेटरी कि केवल VMware की नेटवर्किंग में. अगर आप लोकल इन्वायरमेंट है हमारा, तो लोकल में क्या इस्तेमाल करना है, VM में क्या इस्तेमाल करना है, वो हमें मालूम होना चाहिए. इज इट ओके? Yes, sir. ठीक है. वन मोर ऑप्शन अबाउट द CIDR एंड सबनेटिंग. तो अगर हम CIDR और सबनेटिंग की बात करें ना,
about CIDR and subnetting की अगर बात करें तो it is help us to calculate the value. इतना ज़्यादा वैसे you know that we have a number of options to calculate it. But थोड़ा सा hint दे देते हैं कि कैसे आपको calculate करना है. For example, you have IP address 192.168.1.0 with /26. So this is the CIDR value basically. और इस CIDR वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? We just need to calculate the subnet mask. इसका subnet क्या मिलेगा हमें? और we don't know or about the usable IP address. ये दोनों चीजें हमें कैलकुलेट करनी है. CIDR कैलकुलेट करनी है. Right? So how we can do that? कैसे इसको तैयार करना है वो हम देख लेते हैं एक बार. We have IP address 192.168.1.0/26, right? And as we know that this is the part of IPv4. और IPv4 की कैपेसिटी कितनी है? 32 bits. Now calculate the value. 32 bits को हम डिवाइड कर सकते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8. Again 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है. टोटल नंबर ऑफ बिट्स कितने हैं अपने पास? 26. 8 + 8 + 8 24 हो गया. 8 + 8 16 + 8 24. अपने पास वैल्यू है 26 की. 25 26. बाकी की जो वैल्यू है उसको 0 मेंशन कर दो आप. 5 6. ठीक है. अब अगर आप इस बाइनरी नंबर को कैलकुलेट करेंगे ना, इट बिकम अ 255.255.255. और ये जो वैल्यू है अपने पास, इसको कैलकुलेट 2⁻0 2⁻1 2⁻2 2⁻3 4 5 6 7. 2⁻7 को अगर आप कैलकुलेट करते हैं, इट बिकम 128. 2⁻6 को आप कैलकुलेट करेंगे, इट बिकम 64. बाकी के जो है वो सभी 0 हो गए. इट बिकम 192. तो अपने पास जो सबनेट ऑब्टेन हुआ है ना, विच इज 255.255.255.192. दिस इज आवर सबनेट. ये हमने सबनेट कैलकुलेट किया. आईपी कैसे हमें कैलकुलेट करनी है? तो ये जो लास्ट का सबनेट आया है ना, you need to subtract from 256 minus 192. टोटल जो वैल्यू मिलेगी हमें वो 64 आईपी एड्रेस. दिस इज द वे टू कैलकुलेट. इस मेथड के जरिए हम अपने एनवायरनमेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं. क्लियर? यस सर. सर ये 32 बिट क्या मतलब सर, मेरे को इसमें क्लियर नहीं हुआ कि एड्रेस से 32 बिट. आप जब भी कोई विंडोज में आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करते हैं ना, लेट्स सी ncpa.cpl, वहाँ पे अडेप्टर पे जाकर के हम इसकी प्रॉपर्टीज पे जाते हैं. फॉर एग्जांपल IPv4, this is the box and each box contain a 8 bit. ओके 8 + 8 + 8 + 8. Total number of bits 32. 32. ठीक. Clear? यस. So this is about the basic of IP address. Means ये छोटी सी इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए related to the IP address management in case of any networking, not only the VMware networking. Next,
our agenda to understand each and everything related to the standard switch. So let me explain you about कि standard switch में क्या क्या ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे और क्या क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. कॉन्फ़िगर vSphere the standard switch. As we discussed, जब भी अपने पास ESXi host है, for example, this is our ESXi host. Under the ESXi, we created multiple VM. N number of virtual machines are available in our ESXi host. If you want to manage the networking, then standard switch come into the picture. इस केस में स्टैंडर्ड स्विच हमारा टास्क परफॉर्म करेगा. नेक्स्ट, another important part, how we can manage the standard switch. So let me design one diagram to understand about the standard switch. Look wise, topology wise, standard switch like this. This is uplink. Okay, think about it. इसको हम uplink बोलेंगे. And this one is our VM network. और ये अपना मैनेजमेंट नेटवर्क. अपलिंक, VM नेटवर्क और मैनेजमेंट नेटवर्क. अपलिंक क्या है? जो आपका फिजिकल अडेप्टर है, विच इज कंसिडर्ड एज ए अपलिंक. जो आपके NIC, जो आपके ESXi की IP, जैसे अपने केस में भी है 192.168.1.15, ये अपने पास फिजिकल NIC. VM network responsible to contain the virtual machines networking. ये वर्चुअल मशीन की नेटवर्किंग को कंटेन करेगा. लाइक दिस. जितनी भी वर्चुअल मशीन बनाएंगे वो VM नेटवर्क में जाएगा. About the management network, so management network contain two important part. One is VM kernel, and second one is related to the vMotion, FT, fault tolerance, and other settings. This is the infra of our, you can say that, our standard switch. ये अपने पास कुछ एक तरीके से आप डिजाइन बोल सकते हैं कि हमारे स्टैंडर्ड स्विच का एक तरीके का डायग्राम है.
let me show you the GUI of our standard switch. The topology of a standard switch, आप देखिए यहाँ पे ये अपने पास दिस वन इज VM नेटवर्क, ये पोर्ट ग्रुप मैंने एडिशनल बना रखा है. दिस वन इज अवर मैनेजमेंट ग्रुप और ये अपने पास फिजिकल एडेप्टर. इज इट ओके? Sir, ये VM network or management network both are in the same VLAN ID. Is it is that how it is? It's fully depend upon you. You have option to change it. Okay. Because what happened in real environment, you need to establish your own port group and change the VLAN ID. Okay. अगर any question? सर एक क्वेश्चन है कि अभी ये सिर्फ एक VLAN बनाएगा, अभी हमें एक और VLAN बनाना तो एक अलग फिजिकल एडेप्टर पे लगा के हमें बनाना पड़ेगा? No, not required. मतलब Not required. नॉट Not रिक्वायर्ड? required. नहीं नहीं नहीं. अच्छा. आप देखो, we need to add multiple NIC card दो पर्पज के लिए कि अगर आप स्टोरेज को अलग करना चाहते हैं, VM के कनेक्शन को अलग करना चाहते हैं, तब आप दो स्टोरेज दो नेटवर्क लगाएंगे, अडेप्टर लगाएंगे. और दूसरा, ओके. अगर आप NIC थीमिंग करना चाहते हैं, निक थीमिंग करना चाहते हैं, तो उस केस में भी आप दो अडेप्टर. सर देखो मेरे केस में मुझे पता है कि हम लोगों ने फिजिकल NIC अलग किया हुआ है और स्टोरेज अलग किया हुआ है. हाँ, आपने VM कर्नल अलग कर रखा है और वर्चुअल मशीन हाँ की जी. नेटवर्किंग अलग कर रखी है. हाँ, अगर मेरे को अब मेरे जैसे इस इन्वायरमेंट में दो VLAN बने हुए हैं. एक अच्छा, सर्वर के लिए अलग बना रखा है, एक वर्कस्टेशन के लिए अलग बना रखा है. तो वो ठीक है. दो अलग अलग फिजिकल एडेप्टर से चल रहे हैं या सिंगल फिजिकल एडेप्टर से चल रहे सिंगल होंगे? सिंगल सिंगल मैं थोड़ा सा सिंगल. आपको हिंट देता हूँ कि एक्चुअली में ये गैप क्या है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है इस केस में, हम्म. स्टैंडर्ड स्विच के केस में. फॉर एग्जांपल, स्टैंडर्ड स्विच का थोड़ा सा हम लुक यहाँ पे चेंज कर रहे हैं, ठीक है. जस्ट लाइक अ नॉर्मल स्विच, ये अपने पास स्टैंडर्ड स्विच है फॉर एग्जांपल. और यू नो दैट इज स्टैंडर्ड स्विच में मल्टीपल पोर्ट्स हैं, इसको हमने दो पार्ट में कैटेगराइज कर दिया है, ठीक है. ये आपका हो गया इस साइड वाला VM नेटवर्क हो गया, ठीक है. और इस साइड वाला हो गया मैनेजमेंट नेटवर्क. ये VM नेटवर्क है, ये मैनेजमेंट नेटवर्क है. जब आप निक कार्ड लगाते हैं ना, जब आप NIC लगाएंगे, मान लीजिए आपने दो NIC लगाई, ये आपके पास एक निक कार्ड लगाया आपने, ये डायरेक्टली स्टोरेज को कॉन्फ़िगर करेगा, मैनेज करेगा. जब आप यहाँ पे निक कार्ड लगाएंगे ना अपने मैनेजमेंट नेटवर्क की तरफ से, तो विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर VM नेटवर्क. और इस VM नेटवर्क में आप n नंबर ऑफ VLAN बनाइए. ओके. VLAN 1 है ना, VLAN 2, VLAN 3, कितनी भी VLAN बना दो, वो सभी VLAN एक ही अडेप्टर पे रन करेंगे. ओके. सर वो चाहे पब्लिक फेसिंग हो या प्राइवेट हो, वो मैं आपके ऊपर डिपेंड करता है ना कि आप हमारे. पब्लिक बनाना चाहते हैं या लोकल रखना चाहते ओके. ठीक है. हैं. क्लियर. तो VLAN n नंबर ऑफ VLAN हम बना सकते हैं, उनको सेग्रीगेट कर सकते हैं. अडेप्टर हमारा एक ही रहेगा. हम अडेप्टर ओके. मोस्टली करते हैं स्टोरेज के लिए, ताकि जो ये लॉजिकल यूनिट नंबर वगैरह है ना, फॉर एग्जांपल ये अपना स्टोरेज हो गया, ठीक है.
इस शेयर स्टोरेज से अगर आपको कुछ भेजना है तो ये रिस्पॉन्सिबल है। अगर आपने वीएम तैयार कर रखी है, यहाँ पे वीएम है, इस वीएम का आरडीपी बंदा कनेक्ट करना चाहता है, हम्म, तो इस एडेप्टर के थ्रू स्टार्ट किया जाएगा। ओके गॉट। ठीक है सर। क्लियर हुआ? स्टोरेज सब मैनेजमेंट नेटवर्क वाया आता है ना? सॉरी, Like shared storage, is it via management network, right? वाया मैनेजमेंट नेटवर्क वीएम कर्नल के जरिए, यस। Okay. तो सर जो ESX सर्वर का मैनेजमेंट पोर्ट होता है जो सिर्फ हम लोग CIMS करते हैं, मान लो हर एक का कंसोल होता है, वो किस में आता है? मैनेजमेंट पोर्ट में ही आएगा वो भी? नहीं 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 नहीं, यू आर टॉकिंग अबाउट द वी सेंटर मैनेजमेंट पैनल। नहीं, जैसे सर ESX है होस्ट को हम लोग डायरेक्ट लॉगिन ना करके मैनेजमेंट पोर्ट के थ्रू जो एक्सेस करते हैं किसी को, जैसे मान लो हम पुट्टी के जरिए। पुट्टी के जरिए भी कह सकते हो आप, या फिर सर वेब के जरिए भी कह सकते हो। ESXi का मैनेजमेंट नहीं होता है, मैनेजमेंट पैनल आप एक्सेस करेंगे अपने वी सेंटर सर्वर का। वी सेंटर का, ओके ठीक है सर। ठीक है, दो ऑप्शन होते हैं वी सेंटर सर्वर को एक्सेस करने के लिए, एक GUI और दूसरा GUI मैनेजमेंट पैनल। मैनेजमेंट, हाँ। ठीक है, GUI जो है इन्वेंट्री है, जो ESXi बताएगा, मैनेजमेंट जो है हेल्थ बताएगा, नॉट ओनली द हेल्थ, एन नंबर ऑफ सर्विसेज आपको बताएगा। हम्म, और ओके उसमें दोनों में केवल गैप इतना है कि आप मैनेजमेंट नेटवर्क को एक पर्टिकुलर पोर्ट से कनेक्ट करते हैं, और जब आप GUI एक्सेस करना है तो उसमें कोलन लगा करके 80 या 443 आप कॉन्फ़िगर कर लेंगे। ठीक ठीक है सर, ठीक है, ओके। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? अभी अभी तो हम लोग थियोरेटिकल में ही हैं, अभी हम मूव करेंगे प्रैक्टिकल के लिए। बट कॉन्सेप्ट अगर हमारा क्लियर रहेगा तो चीज़ें आसानी से हम समझ पाएंगे। तो यहाँ तक सर कोई क्वेश्चन? मेनली हम लोग स्टैंडर्ड स्विच ही कॉन्फ़िगर करते हैं या ज़्यादातर? नहीं 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 नहीं, नहीं इट्स फुली डिपेंड नहीं। अपॉन यू। इसलिए हम पहले ही डिस्कस कर लिए कि वी हैव अ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्विचेस, राइट? हम्म, इफ यू हैव सिंगल ESXi और आप उसमें मैनेज करना चाहते हैं तो आप जाएंगे स्टैंडर्ड की तरफ। अगर आपके पास मल्टीपल ESXi है, जो कि नॉर्मली होते ही हैं, उस जो केस नॉर्मल में होते हैं। आप DB स्विच लगाएं। ओके, क्लियर? श्योर। ठीक है, ये अपने पास थोड़ा सा हिंट हुआ अपने स्टोरेज मैनेजमेंट का, मीन सॉरी अडेप्टर मैनेजमेंट का, नेटवर्क मैनेजमेंट का। ये अपने पास GUI लूप है, मीन्स आप बोल सकते हैं काइंड ऑफ टोपोलॉजी। और इसमें ये क्लियर तरीके से मेंशन है कि हमारे पास ये अडेप्टर है, ये VM नेटवर्क है, ये विंडोज 7 मशीन जो वर्चुअल मशीन अवेलेबल है, every options are available. So our responsibility to manage each and everything। बैक आ जाते हैं यहाँ पे नेटवर्किंग में। पोर्ट ग्रुप है, वर्चुअल स्विचेस है, फिजिकल एनआईसी है, VM कर्नल है, TCP/IP स्टैक्स है, और फायरवॉल रूल्स है, लॉजिकल फायरवॉल रूल्स है, जहाँ से हम सर्विसेज को स्टॉप या स्टॉप कर सकते हैं, स्टार्ट या स्टॉप कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम पोर्ट ग्रुप। ठीक है, पोर्ट ग्रुप से स्टार्ट करें। कैन यू हियर मी? यस सर, यस सर। What do you think about the port group? Any idea? Any hint? नो सर। Maybe something VLAN? like a VLAN map रहेगा, और उस VLAN पे जो VMs connect होगा, everything can communicate among each other. Correct. Anything else? No, sir. Okay, let's talk about the VLAN and port group। दोनों को कंपेयर करते हैं।
VLAN is a protocol which is available in our physical switch. This is our switch that we purchased with maybe 24 ports. चौबीस पोर्ट की हेल्प का एक स्विच हमने परचेज किया है एंड यू वांट टू कैटेगराइज इन डिफरेंट डिपार्टमेंट. आप एचआर को अलग रखना चाहते हैं, सेल्स डिपार्टमेंट को आप अलग रखना चाहते हैं, एंड यू वांट टू क्रिएट अ नेटवर्क फॉर आईटी डिपार्टमेंट सेपरेटली. बट अनफॉर्चुनेटली यू हैव अ सिंगल पोर्ट ग्रुप, सिंगल स्विचेस. तो इसके लिए हमें क्या करना है, एक वीलैन तैयार कर देना है एचआर का, एक वीलैन सेल्स का, और एक वीलैन आपका आईटी डिपार्टमेंट. सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है वीलैन की आईडी. जब आप वीलैन बनाते हैं ना, उसमें आपको नंबर डिसाइड करना पड़ेगा. वीलैन 1, वीलैन 2 और वीलैन आईडी 3. ठीक है. जो डिफरेंट वीलैन है ना, आईडी है, ये आपके नेटवर्क को सेग्रीगेट करते हैं. अगर आपने आईटी डिपार्टमेंट में 5 मशीनें लगा रखी हैं, सेल्स डिपार्टमेंट में 2 इंस्टेंस लगा रखे हैं, और एचआर डिपार्टमेंट में भी आपने 2 इंस्टेंस लगा रखे हैं, 2 वर्चुअल मशीन लगा रखे हैं. अगर ये एक ही स्विच से जुड़े हैं बट यू डोंट वांट टू कम्युनिकेट ईच अदर, वीलैन में रखने के बाद ये आपस में पिंग नहीं करेंगे, ये आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे. क्लियर? यस सर. ठीक है. एज इट इज VMware के केस में क्या होता है ना, कि जो हम पोर्ट ग्रुप बनाते हैं basically, ये अपने पास हो गया अपलिंक, दिस इज आवर मैनेजमेंट नेटवर्क, और ये अपना हो गया VM नेटवर्क. VM network is also a type of VLAN. You want to create a multiple segregation in the sense कि आप यहाँ पे multiple VLAN बनाना चाहते हैं HR के नाम से. सेल्स के नाम से. ठीक है. अब HR और सेल्स का जो कॉन्सेप्ट है, HR और सेल्स का जो कॉन्सेप्ट है, ये दोनों ही आपके कंसीडर किए जाएंगे एज ए पोर्ट ग्रुप. ये हमारा जो है ये पोर्ट ग्रुप कहलाएगा. यहाँ पे हम VLAN बोल रहे हैं इसको, VLAN 1, VLAN 2, VLAN 3. यहाँ पे हम पोर्ट ग्रुप 1, पोर्ट ग्रुप 2, पोर्ट ग्रुप 3 बोल रहे हैं. इज इट ओके? सर एक चीज़, तो यहाँ पे हम लोग 24 पोर्ट स्विच पे जो कर रहे हैं चीज़, अगर हम इधर ही कर रहे हैं VM नेटवर्क में, तो वो पोर्ट ग्रुप होगी. ठीक है. अगर उसको यहाँ नहीं बनाएंगे तो वो यहाँ बन सकती है VM नेटवर्क में, बहुत या मुश्किल दोनों होगा. जगह बनाना? नहीं, वी आर अनेबल टू सेग्रीगेट आवर वर्चुअल मशीन्स नेटवर्क. ओके ओके. अगर आप फिजिकल पे करेंगे तो कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे. ठीक है. क्लियर ना? वो मैनेज ही नहीं हो पाएगा. आप यहाँ की VM को फिजिकल स्विच के थ्रू नहीं कंट्रोल कर पाएंगे. गुड. Done? Any question? Any doubt? नो सर. चलो इसका प्रैक्टिकल, बट एक छोटा सा ब्रेक ले लें, उसके बाद फिर प्रैक्टिकल करें इसका. ठीक है. This conference will now be recorded. Okay, so
आई होप कि जो ये कॉन्सेप्ट है पोर्ट ग्रुप का ये क्लियर होगा. यस सर. Yes, sir. ठीक है. Let me show you the practical, means how you can implement the practical, which is really important for us. तो practical के लिए हमें क्या करना है? This is our network panel. Under the network panel, we are able to find one option, port group. Click here and add the port group name. यहाँ पे हम कोई सा भी नाम दे देते, like HR, and this is really important. You must need to change the VLAN ID for every VLAN. अगर आप चेंज नहीं करते हैं ना, तो इट मीन्स दैट जो वर्चुअल मशीन्स हैं उनमें आप सेग्रीगेशन नहीं कर पाएंगे. गॉट इट व्हाट आई एम सेइंग? सागर, व्हाट डू यू थिंक Will it अबाउट be द VLAN ID? यस considered सर. like teaming बोल के बोलते हैं ना, port channeling, where multiple ports are connected together. Usually physical switches पे सब हम लोग port channel बोलते हैं, where करेक्ट. multiple ports are combined together to form one port. राइट. देखो, फॉर एग्जांपल आपने एक पोर्ट ग्रुप बनाया विद नेम ऑफ मे बी HR के नाम से, राइट? द विलेन दैट यू क्रिएटेड विद नेम ऑफ HR, इसकी विलेन आईडी आपने 2 रखी. सेल्स आपने बनाया एंड इसकी भी विलेन आईडी आपने 2 रखी, राइट? HR में आपने 2 इंस्टेंसेस यानी 2 वर्चुअल मशीन ऐड कर रखी है. सेल्स आल्सो कंटेन अ 2 डिफरेंट वर्चुअल मशीन. नाउ VLAN हम क्यों बनाते हैं, पोर्ट ग्रुप हम क्यों बनाते हैं? क्योंकि आपस में कम्युनिकेट ना करने पाए. इज इट करेक्ट? वी डोंट वांट टू कम्युनिकेट, वी वांट टू सेग्रीगेट ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट्स. दैट्स व्हाई VLAN come into the picture, राइट? यस सर. बट अगर राइट. आपने पोर्ट ग्रुप को सिमिलर रख दिया, इफ यू आर यूजिंग द सेम पोर्ट ग्रुप, तो इट मीन्स दैट आपने सिर्फ नेम बदला है उसका, बाकी जो लॉजिकल एक्टिविटी है उसमें तो कोई चेंजेस नहीं किया. तो ये पीसी और ये पीसी आपस में कम्युनिकेट करने लगेगा. दैट्स वाई आपको हर एक पोर्ट ग्रुप के अंदर उनकी जो आईडी है ना, उसको आपको रीसेट करना पड़ेगा. नॉट रीसेट मीन्स चेंज करना पड़ेगा एक दूसरे से. प्लीज कंफर्म. सॉरी सर, एक बार दोबारा रिपीट करेंगे सर, एक मिस हो गया. वी हैव अ 2 डिफरेंट VLAN. 2 VLAN हमने प्लान किया है क्रिएट करने के लिए, HR VLAN और सेल्स VLAN, राइट? ओके. जब आप VLAN क्रिएट करते हैं ना, तो ये आपसे VLAN ID बोलता है कि कुड यू प्लीज प्रोवाइड मी द VLAN ID. गलती से आपने एक ही VLAN ID दोनों को असाइन कर दिया. ये जो आईडी है VLAN ID, आपने HR को भी सेम दे दिया और सेल्स को भी सेम प्रोवाइड कर दिया, राइट? सो इस केस में क्या होगा, ये जो इंस्टेंसेस आप HR में रखेंगे, जो वर्चुअल मशीन्स आपकी HR में जाएंगी या जो वर्चुअल मशीन आपके सेल्स में जाएंगी, वो दोनों आपस में कम्युनिकेट करने लगेंगे. नो मैटर आपने 2 VLAN क्रिएट किया है, आईडी सेम होने की वजह से दोनों ही डिपार्टमेंट आपस में कम्युनिकेट करेंगे. फाइन. यस सर. चाहे वीलैन अलग बनाए और अगर वीलैन आईडी सेम दे दी तो वो कम्युनिकेट करेंगे. डेफिनेटली करेक्ट. ना, फिर उसमें कोई चेंजेस ही नहीं रहा. ओके. कैन वी प्रोसीड फॉर नेक्स्ट? यस सर. चलो, लेट मी क्रिएट फ्यू VLANs. HR बना देते हैं, इसकी VLAN ID हम रख देते हैं 5. क्लिक ऐड. वन मोर VLAN तैयार कर लेते हैं विद नेम ऑफ IT. सर एक बार वो वर्चुअल स्विच पे क्लिक कीजिए सर, एक बार. गिव मी 1 मिनट. एक यहाँ पे बना लेते हैं, इसका हम पोर्ट ग्रुप रख देते हैं 8. नाउ, यस प्लीज.
No, sir. In port group itself, there was an option drop down, right? That one in port group. Add port group कीजिए sir एक बार. Mm-hmm. Yes, virtual switch. Yes. Okay. As we had created only one virtual switch, it will show only one switch. We have a default virtual switch. अपने पास कोई दूसरी virtual switch है ही नहीं, Okay. है ना? So if you have a multiple virtual switch, ये आपको ऑप्शन देगा कि आप ये पोर्ट ग्रुप किस में ऐड करना चाहते हैं, किस पोर्ट ग्रुप Okay. में आप ऐड करना चाहते हैं, राइट? Okay. Okay. Got it. Okay. So we successfully created two different department और इनका जो VLAN ID आप देखिए totally different है, 8 and 5. IT department 8, HR department 5. Now it's our responsibility. कि let me create few virtual machine only for identification, है ना? यहाँ पे कुछ virtual machine create कर लेते हैं only for testing purpose, क्योंकि हमें segregate करना होगा. One more instance I want to add with any name. इसमें OS तो है नहीं, तो हम एक और VM बना देते हैं Windows 8 के नाम से. चलिए, नंबर ऑफ इंस्टेंसेस हमने कितने तैयार कर लिए? 3. 2 नया तैयार किया था ना सर. ठीक है. So we have a 3 different instances और number of VLAN अपने पास including default VLAN 3 VLAN अपने पास अवेलेबल है. So let me check कि ये हमारे जो instances है इनकी लोकेशन क्या है, कौन से VLAN से जुड़े हुए हैं. Click networking, select switches, virtual switches और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे अपने पास. तो नंबर ऑफ VLAN कितने हैं? IT डिपार्टमेंट में 2 वर्चुअल मशीन विंडोज 10 एंड विंडोज 8 जो पहले था, अभी हमने ऐड की. सॉरी, HR डिपार्टमेंट में. IT डिपार्टमेंट में 0, कोई भी वर्चुअल मशीन नहीं ऐड है. और VM नेटवर्क में एक जो पुरानी वर्चुअल मशीन पहले से अवेलेबल थी. करेक्ट? नाउ यू वांट टू ट्रांसफर योर विंडोज 10 टू IT डिपार्टमेंट. अगर आपको ये वर्चुअल मशीन IT डिपार्टमेंट में ले जानी है तो आप VM की प्रॉपर्टीज पे आएंगे, विंडोज 10, एक्शन, एडिट सेटिंग एंड यहाँ पे देखिए एडेप्टर का ऑप्शन है. HR की जगह पे IT डिपार्टमेंट आप ड्रैग ड्रॉप करेंगे, वो पूरी लिस्ट आ जाएगी कितने नंबर ऑफ पोर्ट ग्रुप आपके पास अवेलेबल है. सेव पे क्लिक करेंगे, बैक टू द वर्चुअल नेटवर्क. एक बार भी फिर से आ जाते हैं नेटवर्क में, फिजिकल सॉरी स्विच प्रॉपर्टीज. अब आप देखिए यहाँ पे तीनों VLAN में ना, VM नेटवर्क में, HR में, IT में, तीनों ही VLAN में एक एक वर्चुअल मशीन हमने स्टैब्लिश कर दी. क्लियर? यस सर. Yes sir. ठीक है. सर नाउ सर और एक वर्चुअल मशीन कितना निक सपोर्ट करता है? एक वर्चुअल मशीन कितने NIC अटैच कर सकते हैं उससे? VM की बात कर रहे हो, VM के अंदर NIC की? यस, VM का NIC.
इंडिविजुअल ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर अगर हम निकाट की बात करें तो आई थिंक वी आर एबल टू कनेक्ट अप टू 99 NIC इन सिंगल वर्चुअल मशीन बाय डिफॉल्ट. Okay, so for example, you have this Win 10, it can have up to 99 nicks. Windows हाँ, 7 can have, okay. अब विंडोज के केस में बिकॉज यू नो दैट विंडोज 7 के बाद से जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम 99 आप निकाट अटैच कर सकते हैं. So it depends on the operating system, but not on the VM. नो नो इट्स फुली बेस्ड ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम की हमारा जो ओएस है वो कितने सपोर्ट करता है. Oh, okay. क्लियर. Yes, sir. तो इसकी रिक्वायरमेंट हमें मेनली जैसे मान लो 3 या 4 एनआईसी लगानी है एक वीएम पे, वो हम्म. रिक्वायरमेंट सर कैसे बनती है? मतलब कि लोड बैलेंसिंग के लिए कह सकते हो, जैसे एक सर्वर रेडी किया वो डीबी का है, तो उसमें लोड ज़्यादा आ रहा है उस नेटवर्क पे एक एनआईसी पे, इसलिए हम 2 या 3 एनआईसी लगाते हैं, या कोई और रीज़न भी हो सकता है? कभी भी एनआईसी मोर देन वन एनआईसी हम फिजिकल एनवायरनमेंट में लगाते हैं. कभी भी वर्चुअल इन्वायरमेंट में वीएम में एनआईसी नहीं ऐड किया जाता. ओके। ठीक है. वर्चुअल मशीन में एनआईसी नहीं ऐड करते क्योंकि वीएम के केस में क्या होता है, लोड बैलेंसिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी होती है. लोड बैलेंसिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारे पूरे इन्वायरमेंट की, पूरे स्विच की. ओके। ओके। क्लियर. वर्चुअल मशीन में डायरेक्टली हम अटैच करने और अटैच नहीं करते. ओके। क्लियर. यस सर। Yes, sir. ठीक है. अब देखो अनदर इम्पोर्टेंट पार्ट विच इज रियली इम्पोर्टेंट फॉर अस, वी मस्ट नीड टू नो अबाउट द यूसेज. अगले अगर हम ऑप्शन की बात करें, ठीक है, अगले हम ऑप्शन की बात करें यहाँ पे, तो लेट्स स्टार्ट विद आवर वर्चुअल मशीन स्विचेस. ठीक है. जो ये वीएम स्विच है ना, इसके बारे में पहले देखते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे. n number of features contained by our NIC card, contained by our virtual switch. Open network, click virtual switch and click action. Go to the edit option. Okay. Under the edit option, we are able to find a number of options. So let's try to understand about each and everything. Like as a MTU. What do you think about the MTU? Maximum transmission unit. It's like that's it. That side packets can be sent on this. Okay. Any example when we need to configure it? In case if there are like jumbo packets, we have to specify that was guys we are using a jumbo frame. So uh, during that time we have to select whether it's like 9600 or if we are using a normal MTU size 2500. In case if there is any additional headers are getting added, then we have to adjust that according to this. Right. So you can say that if you want to control the communication, if you want to control the speed of your data transaction in case of virtual environment, then MTU come into the picture. So actually real environment में इतना ज़्यादा deep जाने की requirement नहीं होती, but at least हमें पता होना चाहिए कि means इनकी meaning क्या है और इनका usage क्या है. Clear? यस सर।
1 minute, please. Okay, so the first one is MTU, maximum transaction unit, which is decide the data transaction speed. और दिस इज आवर अपलिंक, अपलिंक इन द सेंस फिजिकल अडेप्टर जो आपने ऐड कर रखा है वो, उसकी इंफॉर्मेशन. थर्ड ऑप्शन, लिंक डिस्कवरी, विच इज स्पेसिफाई फॉर अ डिफरेंट मोड, लिसन मोड, एडवर्टाइज मोड, बोथ आर यू कैन से दैट नन. ठीक है, एक्चुअली इसका जो यूसेज है ना, यू नो दैट इन्वायरमेंट के अंदर जो फिजिकल इन्वायरमेंट आपने इस्टेब्लिश कर रखा है, फिजिकल इन्वायरमेंट इन द सेंस जो भी नेटवर्किंग के लिए आपने फिजिकल डिवाइसेस लगा रखी है, ठीक है, और उस डिवाइस में अगर सिस्को डिवाइसेस है या नॉर्मल डिवाइसेस है या अदर कोई मैनेज कर रखा है, तो उस केस में ये आपके जो दो मोड हैं, लिसन मोड एंड एडवर्टाइज मोड. द मीनिंग ऑफ लिसन मोड विच इज information put up by वर्ड फिजिकल स्विचेस, एंड एडवर्टाइज मोड के केस में क्या होता है, our switches self approach for the communication. Is it clear? Yes, sir. यस सर. ठीक है, मैं उतना डीपली जाने की जरूरत नहीं होती, बट यू शुड नो अबाउट कि इनकी मीनिंग क्या होती है. प्रोटोकॉल यहाँ पे है CDP, which is Cisco Discovery Protocol, which is applicable only for the you can say that which is applicable for our Cisco devices. अगर environment में हमने Cisco devices को establish कर रखा है, तो उस केस में ये आपका CDP प्रोटोकॉल को कॉन्फ़िगर करना चाहिए. सर सिस्को डिवाइसेस बोले तो मतलब स्विच की बात कर रहे हैं, मतलब सिस्को स्विच कोई. It may be Cisco switch, it may be Cisco router, है ना, कोई से भी डिवाइस इसमें. So can you click on that CDP and just let us know what are the options available? ये Only the one LLDP option. नहीं है, LLDP नहीं है, because that is basically what all the other vendors use rather than Cisco. CDP is only like proprietary to Cisco. Correct, correct. It is applicable LLDP for is open. Cisco only. Okay. Means if any other devices are available, तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर सिस्को की डिवाइसेस है, तो इट इज अप्लीकेबल फॉर टू मैनेज द सिस्को ओनली. Okay. क्लियर? यस सर. नाउ अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट इज सिक्योरिटी. अंडर द सिक्योरिटी आप देखिए यहाँ पे तीन ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, प्रोमिस्कुअस मोड, मैक एड्रेस चेंजेस एंड फोर्ज ट्रांसमिट, विच इज रियली इंपॉर्टेंट. वी शुड नो अबाउट द यूसेज ऑफ दीज थ्री इंपॉर्टेंट सर्विसेज. लेट्स स्टार्ट अबाउट द प्रोमिस्कुअस मोड. यहाँ पे एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट तीनों ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, एंड अनफॉर्चुनेटली सभी पे हमने रिजेक्ट का, बाय डिफॉल्ट सभी का ऑप्शन, सभी ऑप्शंस यहाँ पे रिजेक्ट पे हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द यूसेज की किसका कब इस्तेमाल होगा, राइट?
So start from the promiscuous mode. तो promiscuous mode क्या है? Think about, for example, this is your environment, live environment, physical environment की बात कर रहे हैं यहाँ पे. Uh, this is our office setup जहाँ पे multiple computers available हैं. These all are the physical machine, ठीक है. और यहाँ पे आपने एक छोटा सा डिपार्टमेंट बना रखा है वीएम का, जिसमें से आपने मल्टीपल ESXi होस्ट कर रखी है. Multiple ESXi contain multiple virtual machines as well. These all are the VMs are available. Both are connected to same switches. यहाँ पे अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें तो जो फिजिकल डिवाइसेस है और जो आपका ESXi होस्ट है, all are connected to each other. Clear? Virtual machine and physical machine, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका. VM means vSphere VM and physical VM, दो अलग अलग इंस्टेंसेस है यहाँ पे. अगर आप इनके बीच में कम्युनिकेशन रखना चाहते हैं, इफ यू आर टू कम्युनिकेट बिटवीन फिजिकल टू वर्चुअल, व्हाट यू नीड टू डू, आपको इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा. इज इट फाइन? फिजिकल बोले तो मतलब कोई अपने लैपटॉप से और अपने वीएम को कनेक्ट करना है, तो उसके लिए हमें इसको इनेबल करना है. नॉट ओनली द कनेक्शन, डेटा शेयरिंग. डेटा शेयरिंग. जैसे सर मेरा फाइल सर्वर वीएम पे है और एक किसी लैपटॉप से उसको मुझे एक्सेस करना है, तो इसके लिए मुझे इसको अलाउ करना ज़रूरी है. मैंडेटरी है. अगर आप नहीं करेंगे ऐसा तो यू आर अनेबल टू कनेक्ट द virtual, you are unable to transfer the data. ओके. Is it fine? यस सर. आप कोई भी डेटा आपस में ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे. क्लियर? यस सर. Next, MAC address changes. As per the name suggests, MAC address changes. You should know about कि ये काम कहाँ करेगा. MAC address changes की का एक्चुअल वर्क कहाँ पे होगा. तो बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है MAC address changes में. But for this particular task, you must need to connect it with your vCenter server. Think about it. जब आप किसी भी वर्चुअल मशीन का क्लोन तैयार करते हैं, राइट, आपने यहाँ पे VM का क्लोन बनाया है या टेम्पलेट बनाया है. तो इन केस ऑफ क्लोन व्हाट हैपन, ये एज इट इज एक सेम कंप्यूटर बना देगा, सेम VM क्रिएट कर देगा. द मीनिंग ऑफ क्लोन यही तो हुआ ना कि ये दूसरा VM तैयार कर देगा. एंड एवरीथिंग आर सेम. यहाँ पे इसका PC नेम, इसकी IP एड्रेस, राइट, इसका MAC एड्रेस, ये सभी जो रहेगा आपका बिल्कुल सेम रहेगा एज इट इज ओरिजिनल वर्चुअल मशीन. बट थिंक अबाउट इट, आप PC नेम बदल सकते हैं मैनुअल, IP एड्रेस मैनुअल चेंज कर सकते हैं, बट आई डोंट थिंक वी हैव ऑप्शन टू चेंज द व्हाट वी कैन से दैट MAC एड्रेस. इज इट पॉसिबल टू चेंज द MAC एड्रेस? ऐसा कुछ पॉसिबल है? नहीं सर, आई थिंक नहीं. We are unable to change the MAC address, right? हम इस यस केस सर. में MAC एड्रेस को चेंज नहीं कर सकते. So what you need to do in this case, आपको एक कमांड चलानी होती है which is systrup, right? यस सर. राइट. सिस्टम प्रिपरेशन की एक कमांड चलाते हैं जिससे वो सारी चीजें जो है रीसेट कर देता है, मीन सारी चीजें चेंज कर देता है. बट मैक एड्रेस चेंजेस आपका तभी होगा जब आप यहाँ पे मैक एड्रेस चेंजेस को एक्सेप्ट करें. अगर आपने इसको ओके. रिजेक्ट कर दिया, नो वन कैन चेंज द मैक एड्रेस. Could you please explain me how we can use it in our real environment? And when we तो need सर to proceed with configure it in the real environment? सर मैं सर क्लियर नहीं हुआ. बैक एड्रेस
चेंज ये तो तब जरूरत पड़ती होगी ना जब हम किसी वीएम का कोई क्लोन बना रहे होंगे, आई गेस आपने हाँ ये हाँ बताया जैसे क्लोन बनाएंगे तब जरूरत पड़ेगी इस चीज़ की हमें। और करेक्ट। हम हम रियल एनवायरनमेंट में इसको डिजेबल ही रखते होंगे वैसे तो, या डिसेबल मीन क्यों? सर मैक एड्रेस तो डिफरेंट रहेगा ना, मतलब हर किसी का। डेफिनेटली आपको डिफरेंट रखना है ना। मैक एड्रेस अगर सेम रहेगा तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। राइट सर। तो व्हाट यू थिंक, इसको एक्टिव रखना है या डिसेबल रखना है? सर फिर तो एक्टिव रखना पड़ेगा ना, अगर हमें मैक एड्रेस तो चेंज चाहिए होगा ना सर, हर किसी का। यस। हम्म। अभी सर उस वाले पेज पे जाना सर एक बार आप दोबारा, तो E6 कंसोल पे मैक एड्रेस चेंजेस, तो अभी सर डिफ़ॉल्ट रिजेक्ट रिजेक्ट था ये, हाँ, सभी तीनों डिफॉल्ट रिजेक्ट पे थे। तीनों रिजेक्ट थे। तो मैक एड्रेस चेंजेस तो फिर इसको भी सर हम एक्सेप्ट करेंगे, लाइक। हम्म। एक्चुअली ये पूरी तरीके से आपके यूसेज के ऊपर डिपेंड करता है। यूसेज के ऊपर इन द सेंस कि अगर आपने प्लान किया कि आई डोंट वांट टू क्रिएट द क्लोन ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्चुअल मशीन, ठीक है। अगर आप इस इंस्टेंस का क्लोन नहीं चाहते हैं, राइट, फॉर द सिक्योरिटी पर्पस, तो यू मस्ट नीड टू मेक इट रिजेक्ट। ओके मीन्स सर, अगर आप, क्लोन और टेम्पलेट वो दो हाँ, अलग चीज हो जाएंगी। any both are different to each other। वो तो डिफरेंट हुई थी, ओके। हाँ, क्लोन एंड टेम्पलेट दोनों अलग की चीजें हैं। मीन्स क्लोन के केस में केवल एक वीएम बनती है। टेम्पलेट मतलब आपने टेम्पलेट बना के रख दिया, थाउजेंड्स ऑफ वर्चुअल मशीन बनानी है, 10 वीएम बनानी है, तो वो आपका टेम्पलेट के केस में आएगा, टेम्पलेट टेस्ट। उसके लिए डिफरेंट आईपी भी नेम अलग हो जाएगा, पीसी नेम भी अलग हो जाएगा, मैक एड्रेस भी अलग होगा ही होगा फिर। करेक्ट। ओके। ठीक है, तो ओके, यहाँ पे आपने ठीक क्या है। किया, या इसको रिजेक्ट किया। रिजेक्ट करने का मतलब है क्लोन तो क्रिएट कर लेगा बंदा, मीन क्लोन इज रेडी टू यूज, बट आप जब इसको, इसका मैक एड्रेस करेंगे, सिस्टम जब चलाएंगे ना, तो ये आपको एरर दे देगा। ओके। You can say that if you don't want to create a clone or template of any virtual machine, आप अपने इस ऑप्शन को, मीन्स जो मैक एड्रेस चेंजेस है, इसको रिजेक्ट रखेंगे। ओके सर, गॉट इट। फोर्स ट्रांसमिट लास्ट ऑप्शन है। फोर्स ट्रांसमिट क्या करता है ना, फोर्स ट्रांसमिट कैन हेल्प अस टू मैनेज द ट्रैफिक। फोर्स ट्रांसमिट कैन हेल्प अस टू मैनेज द ट्रैफिक, बिकॉज यू नो दैट ये आपका ESXi होस्ट है, राइट, और इस ESXi में आपने एक निक कार्ड लगा रखा है, दिस इज द NIC, और इस एनआईसी का कम्युनिकेशन डायरेक्टली स्विच से हो रहा है, जो फिजिकल स्विच अवेलेबल है। इज इट करेक्ट? और यहाँ पे नंबर ऑफ इंस्टेंस अवेलेबल है, नंबर ऑफ फिजिकल मशीन आर अवेलेबल। ठीक है। नाउ यू हैव ऑलरेडी क्रिएटेड सम वर्चुअल मशीन्स एज वेल। यहाँ पे कुछ VMs हैं। यू नो दैट कि हमारी जो वर्चुअल मशीन्स हैं ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है, इस NIC के ऊपर, सिंगल NIC के ऊपर, जिसको हम VM यस नेटवर्क सर। बोलते हैं। यस सर। ठीक है। फोर्स ट्रांसमिट क्या करता है ना, अगर आपके पास यहाँ से हर जगह से रिक्वेस्ट आ रही है, आप देखिए इनके पास, सबके पास सिंगल केबल लगा है, बट अगर आपके ESXi की बात करें तो ESXi कनेक्टेड विद सिंगल केबल, मीन्स रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज द ऑल द ट्रैफिक। जितने भी ESX, जितनी भी वर्चुअल मशीन हैं, सबके ट्रैफिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, हमारे सिंगल केबल की। तो फोर्स ट्रांसमिट क्या करता है, अगर आपने इसको रिजेक्ट कर रखा है, ठीक है, अगर आपने इसको रिजेक्ट कर रखा है, तो इस केस में आपके जो डेटा है, रिक्वेस्ट है, वो क्यू में आएंगे वन बाय वन करके। सॉरी सॉरी,
अगर आपने इसको रिजेक्ट कर रखा है तो जो रिक्वेस्ट है ना वो पैरेलली है। पैरेलल इन द सेंस कि एक साथ 10 लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं, 15 लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और उसमें वो ट्रैफिक जनरेट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट अगर आपने एक्सेप्ट कर रखा है तो ये 1 by 1 करके आएंगे, पहला देन दूसरा देन ऐसे करके रिक्वेस्ट आएगा ताकि ट्रैफिक ना जनरेट हो। क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक है। सर एक बार थोड़ा स्क्रॉल करो ऊपर, स्टिल अगेन बिट मोर, और थोड़ा, हाँ या यहाँ पे sir, this physical VM, it is connected to a V switch, and from that V switch an uplink goes to ESXi. Normally आपने बताया था. So is it possible that is it necessary that there is a like वहाँ पे कुछ constraint कुछ है, जैसे कि bandwidth इतना होना चाहिए, या this is how MTU need to be set up? एक जो MTU है उसमें चेंजेस हमें नहीं करना होता, क्योंकि MTU हमारे NIC कार्ड के ऊपर डिपेंड रहता है। ठीक है। और जो डिफॉल्ट यूनिट रहती है, जो डिफॉल्ट मिनी वहाँ पे कैपेसिटी रहती है, उसी को हम कंसीडर करते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द NIC कैपेसिटी 100 Mbps का भी हो सकता है, 1 Gbps हो सकता है, 2 Gbps, 5 Gbps का भी हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू द फिजिकल NIC कैपेसिटी वो चेंज भी हो सकता है। Okay. And physical VM से जो ESXi की तरफ आ रहा है, that has to be the वो VLAN specify करना पड़ेगा, या it is just the uplink port? Is that the uplink port? विच वन कौन सी की बात कर रहे हैं? Physical VMs वो V switch है ना, वहां से you are coming towards ESXi. हाँ, So that thing, is that the uplink port, or is that the same VLAN what we basically use it for the physical no, VM? VLAN is a logical thing. Okay. VLAN work only with ESXi, and our uplink port are physical adapter responsible to make a communication between virtual to physical environment. Okay. So in that case, in our PC, we have this workstation Pro. Okay. In that virtual network, in those virtual networks, we have this host only NAT, all those options, right? I Right, mean, right, right. how it is bridged. So those basically work on this uplink port of the V switch. I Correct, mean, correct. okay, okay, okay. ठीक है। So this is all about these 3 important options. So you should know about कि आपको क्या सेटिंग रखनी है। इन केस अगर आप कभी भी मैक एड्रेस में कोई एरर देख रहे हैं कि बार बार आपका मैक एड्रेस सिस्प्रप चलाने के बाद मैक एड्रेस में एरर आ रहा है, तो इन दिस केस व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू चेक द प्रॉपर्टी ऑफ योर स्विच। जहाँ पे भी आपकी वीएम कनेक्टेड है ना, उस वीएम की प्रॉपर्टीज आप वेरीफाई करेंगे, चेक करेंगे। क्लियर? यस सर। ठीक है। सो नाउ इट्स रियली इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी ऑप्शन, एनआईसी टीमिंग है अपने पास। So NIC teaming, as per the name suggests, which is help us to manage the load balancing, as well as it can help us as a failover. लोड बैलेंसिंग एंड फेलोवर दोनों का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि लोड बैलेंसिंग इन द सेंस कि आपके पास मल्टीपल रिक्वेस्ट आ रही हैं, तो लोड बैलेंसिंग क्या करेगा, डिवाइड कर देगा। और अगर हम बात करें फेलोवर की, तो इन केस ऑफ एनी एनआईसी डैमेज डाउन, तो यू कैन द सेकंड एनआईसी कैन टेक केयर द ऑल। I'll show you the practical, because for this particular practical we need to add a one more NIC. So please go through the topic that we completed and let me know if you have any question. सर जैसे हमने एक ESX होस्ट को 2 NIC से कनेक्ट कर रखा है, मतलब रिडंडेंसी के लिए, कि मतलब एक पोर्ट डाउन होगा तो दूसरे चलेगा, तो वो भी लोड बैलेंसिंग की तरह काम करेगा सर?
फिर से बोलो भी। सॉरी। यू नीड टू डिसाइड द लोड बैलेंस के लिए आप बनाना चाहते हैं या फिर ये डिफरेंट मेथड है ना। तो विच टाइप्स ऑफ लोड बैलेंसिंग यू वांट टू कॉन्फ़िगर, आपको उस एनालिसिस को यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। क्लियर? यस सर। ठीक है, तो एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, तब तक आप गो थ्रू कर लो इन टॉपिक के ऊपर, एंड देन विल कनेक्ट अगेन एंड डिस्कस मोर अबाउट द नेटवर्किंग। नेटवर्किंग आज खत्म कर देते हैं। ओके। Okay, sir. This conference will now be recorded. Settings which is available in our standard switch. Talk about the another option। तो इसमें जो important है, एक तो पोर्ट ग्रुप हो गया, दूसरा स्विच हो गया, एनआईसी हो गई जो फिजिकल एनआईसी के बारे में, एक और बचा है वीएम कर्नल विच इज रियली इंपॉर्टेंट। वीएम कर्नल इज वन ऑफ इंपॉर्टेंट ऑप्शन। प्रॉपर्टीज पे चलते हैं, एक्शन पे चलते हैं एंड क्लिक एडिट सेटिंग। वीएम कर्नल इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आप देखिए कुछ ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं विच इज सर्विसेज, vMotion, provisioning, fault tolerance login, management, replication and NFC replication। बाय डिफॉल्ट ये अनचेक रहता है, वी नीड टू चेक मार्क इट एंड वी शुड नो अबाउट कि इनका यूसेज क्या है। दिस इज आवर मैनेजमेंट नेटवर्क। पोर्ट ग्रुप हमने मैनेजमेंट नेटवर्क रख रखा है। MTU 1500, वर्जन IPv6 एंड IPv4 दोनों सपोर्ट करेगा। सर्विसेज एक्टिवेट डीएक्टिवेट, vMotion अगर आप एक्टिवेट नहीं करते हैं तो इट मे बी क्रिएट अ प्रॉब्लम वाइल HA। जब आप HA कॉन्फ़िगर करेंगे या मैनुअल माइग्रेशन करेंगे आप अपने एक ESXi को दूसरे, एक वर्चुअल मशीन से दूसरे वर्चुअल मशीन में, तो उस केस में vMotion का एक्टिवेट होना जरूरी है। अगर आप vMotion चेक मार्क नहीं करेंगे, you are unable to migrate the virtual machine from one location to another location। Is it okay? यस सर। सर ये ऑप्शन वी मोशन तो हम सर वीस्फीयर से भी कर सकते हैं या ये होस्ट पे जाके करना होता है सर मेनली? vSphere मतलब vCenter की बात कर रहे हैं आप? वी सेंटर, सॉरी वी सेंटर, हाँ। हाँ डेफिनेटली, जो चीजें आप यहाँ ओके। से कर रहे हैं ना, जो एक्टिविटी हम यहाँ से हम्म। परफॉर्म कर रहे हैं, हम्म। ये सभी एक्टिविटी हम vCenter से भी करेंगे। ओके ओके सर, गॉट ठीक है ना, क्योंकि यू नो दैट कि अब बंदा vCenter भी लॉगिन करे, ESXi भी लॉगिन करे, तो दोनों या टास्क, तो यू नो दैट इट्स नॉट पॉसिबल। तो बेस्ट यही है कि आप you are able to manage both by using vCenter server, by using our normal ESXi। होस्ट। ओके, गॉट इट। आईपी सर, ये जो आईपी है ये हमारे होस्ट का आईपी होएगा ना सर? ये 1.15 जो है स्टैटिक आईपी जो है, हाँ, मैंने ये अपने होस्ट का ये IP इसका एड्रेस होस्ट, ये होस्ट ये का, सकता ओके, ये सच होस्ट का, ओके। So why do we use this TCP/IP stack? TCP/IP stack basically it is used for to manage the kind of gateway and about the server information, about the DNS information। मीन्स ये जो पैनल है ना, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, जैसे TCP/IP स्टैक के अंदर हमने कुछ इंफॉर्मेशन इस्टेब्लिश कर रखी है विच इज हेल्प अस इन केस ऑफ रूटिंग। It gives us the option to manage the gateway। Without gateway, we are unable to operate internet in our computer। जो भी वर्चुअल मशीन्स आप क्रिएट करेंगे, उन वर्चुअल मशीन में आप व्हाट वी कैन से दैट इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पाएंगे अगर ये गेटवे की IP एड्रेस यहाँ नहीं मेंशन किया है तो। क्लियर? So it gives us option related to the
number of adapters that you're connected, and number of IPs which is available in our environment. Clear? Okay. Yes. Okay. लास्ट इसमें फायरवॉल रूल है, विच इज नथिंग, इट्स अ काइंड ऑफ सर्विसेज. आप किसी भी सर्विस को स्टॉप या स्टार्ट कर सकते हैं, लाइक एज सर एक सर्विस दिखी थी SNMP, वो किस काम आती है इसमें सर? SNMP can help SNMP. us to transfer the data from one machine to another machine. Okay. ठीक है, DHCP client 68, ठीक है, ये तो नॉर्मली है. आप यहाँ से ना इस सर्विस को इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं, अलाउ या डिनाई कर सकते हैं अपनी सर्विसेज को. वैसे कोई जरूरत नहीं रहती रियल इन्वायरमेंट में इनमें कोई चेंजेस करने की, नॉट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ आवर रियल इन्वायरमेंट, बट यू शुड नो अबाउट कि यहाँ से हम सर्विसेज को मैनेज करते हैं. दैट्स इट. सो दिस इज ऑल अबाउट द नेटवर्किंग. ये अपने पास सभी नेटवर्क का पार्ट हो गया. क्लियर? Yes, sir. यू नीड टू एस्टैब्लिश योर ऑन Yes, सेटअप, sir. प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करो और उसमें टास्क को फॉर्म करो. लगता है कहीं पे क्वेश्चन या डाउट है तो फिर उसके बाद फिर हम एक और फिर से इसमें डिस्कस कर लेंगे. वैसे ESXi के केस में अपने पास एक टॉपिक और बचा है, विच इज डोमेन ज्वाइनिंग और लाइसेंसिंग. उसके बाद फिर हम Yes. लोग वी सेंटर पे मूव कर जाएंगे. क्लियर? Yes, sir. ठीक है, डन करें आज के लिए इतना. Yes, sir. ठीक है, तो Yes, sir. मैं ये रिकॉर्डिंग आपको भेज दूंगा अभी 1 घंटे के अंदर, और आप Okay, sir. प्रैक्टिस करना. बाकी डोमेन और वी सेंटर सर्वर इंस्टॉलेशन नेक्स्ट सैटरडे, फिर संडे को हम स्टार्ट कर देंगे HATRS वगैरह जो भी. Okay. क्लियर? सर सैटरडे टाइमिंग क्या है सर? 8 बजे करेंगे या 9 बजे कुछ ऐसा? नहीं, 9 o'clock रखेंगे क्योंकि फ्राइडे ऑफिस रहता है, तो थोड़ा सा, क्योंकि 3 बजे तक ठीक ऑफिस है. चलता है ना. वो ओके. देख लेंगे जैसे होगा, अगर पहले ऑफिस खत्म हो गया तो रख लेंगे पहले कल. ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं. 9 o'clock. गौरव आपको कोई चलो प्रॉब्लम तो नहीं 9 o'clock में? No, I'm good. ओके चलो गुड, सर. तो 9 o'clock ही रख लेंगे. 9 o'clock तक लेंगे And सर. ठीक. 9 to 11? हाँ, संडे को हम लोग 3 घंटे 4 घंटे कर सकते हैं, लेकिन सैटरडे थोड़ा टफ हो जाता है हाँ मेरे लिए. ठीक है. ठीक है. ठीक है. ओके. 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 बाय. Okay everyone, thank you.